So, hello friends, I hope all of you are fine, and I welcome you to the next story of my series. Now, I hope कि मेरी पहली स्टोरी जो मिस्टीरियस लम्प पे थी आपको पसंद आई होगी, and if you have not seen that, you can get its link in description. मेरी आज की स्टोरी है एक ओल्ड मैन की, a poor old man with BPH, benign prostatic hyperplasia. Now as we know कि ये एक प्रोस्टेटिक enlargement की कंडीशन है जो कॉमनली ओल्ड एज में मिलती है और मेनली ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स के साथ फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, रिटेंशन इनके साथ ये प्रेजेंट करती है. सो ये ओल्ड मैन एक किसी एक मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ था और वहाँ पे इसकी सर्जरी हुई, पोस्ट ऑफ फेस भी सब ठीक निकला एंड ही वॉज अबाउट टू बी डिस्चार्ज्ड. और उसके डिस्चार्ज के जस्ट एक रात पहले ये इंसिडेंस हुआ. नाउ व्हाट हैपेंड कि इट वॉज द मिडल ऑफ द नाइट एंड एवरीबडी वॉज स्लीपिंग एक्सेप्ट 2 persons, एक ये ओल्ड मैन और एक रेसिडेंट डॉक्टर. तो वो रेसिडेंट डॉक्टर ही वॉज वर्किंग, कुछ फाइल वर्क कर रहा था और ये ओल्ड मैन ही अप्रोच टू हिम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि ही सेड दैट आई एम ऑब्जर्विंग यू सिंस द बिगनिंग और यू आर वेरी सिंसियर, बहुत हार्ड वर्किंग हो और आई ब्लेस यू, और ये सारी उसको बातें कही. तो ही वॉज हैप्पी टू बी ब्लेस्ड, तो ही जस्ट स्माइल्ड. Then he started talking about his problem. ओल्ड मैन ने कहा कि now I'm relieved, अब मेरी प्रॉब्लम अब नहीं है मुझे और काफ़ी अच्छा मुझे इलाज मिला है, आई एम सेटिस्फाइड. लेकिन वो डॉक्टर साहब ने जो पहले दिन मेरे साथ गलत हरकत करी थी वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी. Now it was something shocking for that first year student who had just joined. अभी कुछ दिन पहले ही उसने ज्वाइन किया था और he became interested कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या. तो ही कॉल्ड दैट ओल्ड मैन इनसाइड, उसे बिठाया और आस्क्ड हिम कि टेल मी एवरीथिंग इन द डिटेल्स. सो व्हेन ही टोल्ड हिम इन द डिटेल्स, नाउ ही टोल्ड इन हिज ओन लैंग्वेज एंड आई कैन नॉट यूज दैट लैंग्वेज हियर, बट ही सेड दैट व्हेन आई केम हियर आई वाज हैविंग ऑल यूरिनरी प्रॉब्लम्स. आई वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम ऑफ माई bowel. I had no loose motion, I had no constipation, I had nothing like piles or bleeding or anything else. But still, why did that doctor put his finger inside my rectum? Now, we all know that he was talking about that per rectal examination. That's a part of our routine examination, and just to palpate the prostate, we have to do that examination on patient. Now imagine yourself at the place of that young resident doctor. Middle of the night, everybody is sleeping and suddenly an old man is coming and saying this thing. Now what to do? But he acted very wisely. He explained that old man briefly in a very simple language about the anatomy of prostate, about the enlargement of prostate and about the per rectal examination कि किस तरह से फिंगर से एक इनलार्ज प्रोस्टेट को पाल्पेट किया जाता है. एंड ही वेरी इंटेलिजेंटली ही मेड अ स्केच. सो he got everything. He was relieved. The old man felt very happy and he was satisfied, and all his confusion and his doubt which he was carrying since so many days, it was cleared. So he went to sleep and next day he was discharged. Now what is the moral of this story? See, our patients, they are, most of them, almost all of them, they are not from the medical field. They don't know about the anatomy and physiology of human body. But still, it is their moral as well as legal right to know about their disease and its treatment. It's a legal right. And obviously it becomes our responsibility to explain them everything in a very simple language. I know you may feel that it is and it is difficult. It is difficult than explaining something to your teacher or to your examiner in Viva.
उन्हें एक्सप्लेन करना आसान रहता है, लेकिन एक ले पर्सन को सिंपल लैंग्वेज में ना इंग्लिश टर्म यूज़ करना है ना मेडिकल टर्म यूज़ करना है, और आपको ये एक्सप्लेन करना है. And in this case, you see, the most intelligent part was that he made a sketch. Sketch इस वक्त बहुत काम आते हैं. आपका लैंग्वेज और आपके नॉलेज का जो बैरियर है वो अगर दूर करना है और पेशेंट को विजुलाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम है या क्या आगे ऑपरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, स्केच से अच्छा कुछ नहीं है. यू मस्ट हैव सीन कि कई डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको साइड में कुछ रफ स्केच बना हुआ मिलता है, एंड इट्स वेरी प्रेशियस. सो whenever you are doing anything, एक छोटी सी प्रोसीजर भी है, एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन की प्रोसीजर भी है. इट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी ब्रीफ लैंग्वेज, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स आर इनफ. आप किसी पेशेंट का नाउ ही वॉज क्वाइट राइट, ही वॉज हैविंग, अगर वो कोई कॉन्स्टिपेशन के साथ या पाइल्स की प्रॉब्लम के साथ आता और उसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया होता तो शायद उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. बट हिज डाउट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि मुझे यूरिनरी प्रॉब्लम थी, फिर भी मेरा पर रेक्टल एग्जामिनेशन क्यों किया. सो थैंकफुली ही मेट दैट रेसिडेंट, ही टॉक टू दैट रेसिडेंट, अदरवाइज नेक्स्ट डे वो डिस्चार्ज हो जाता तो ट्रीटमेंट तो उसका हो जाता, पर कुछ बिटर मेमोरीज और कुछ कन्फ्यूज़न वो उस कॉलेज से बाहर ले जाता. सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू. इट मे बी डिफ़िकल्ट इन द इनिशियल पार्ट, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे यू विल बिकम एक्सपर्ट इन इट, सो दैट बहुत ही ब्रीफ और एक शॉर्ट लैंग्वेज में आप किसी भी बीमारी या किसी भी प्रोसीजर के बारे में अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, और जो ज़रूरी भी है. सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, एंड इफ सो वंस अगेन प्लीज़ like it, share it with your friends, and what do you feel about it? Just let me know it by your comments, and we'll meet again very soon with some other video on some lecture or some story. Till then, stay healthy, stay safe, and always keep learning in your life. Goodbye.